सो सत्संग की स्टार्ट करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा अन्नू मुंजाल आंटी को कि वो आए और सत्संग शेयर करें। Jai Guruji, Sangat ji, my name is Anu Munjal and I am at GK in Delhi. I'll share my satsang with you, the amazing time that I could get a chance to spend with Guruji and how everything that Guruji did to me, my complete life got changed and transformed for the best. So I'll just start with it. In November 2005, I met Guruji, and we were actually, it was a day of Karwa Chauth, and we were just rotating the thalis. And one of my friends who was just with me there, she said कि एक गुरुजी हैं जो एम्पायर स्टेट में रहते हैं एंड वो चाय प्रसाद देते हैं और लंगर प्रसाद देते हैं and he blesses you. So that was Olga auntie. I am neighbor of Olga auntie. So she told me that one must go to that Guruji. So me and my husband, we both thought, okay, let's go and go try कि कौन है and कैसे Guruji हैं ये. So we started and on the way, my husband wanted to go to the washroom. And we were in the car only and I told him, I said कि घर से ना bathroom होकर जाना चाहिए because there we might, that's a new place and doesn't look nice that we are going there and having an access to the washroom. Now this conversation got over in the car. When we reached to Guruji at Empire State, Guruji ka pura darbar jaise laga hua tha, everybody was around. So the moment I entered, Guruji was there on his gaddi and he told me, "Gharo washroom hokar aaya karo." I got so embarrassed कि ये मतलब how is he telling me कि घर से bathroom होकर आया करो. I said, "हाँ जी Guruji, surely." And then I sat there. He said, किधरों आए हो? I said, "Guruji, Greater Kailash से." कहते हैं गटर कैलाश. गुरुजी ग्रेटर कैलाश को गटर कैलाश बोलते थे. I said, हाँ जी गुरुजी. कहते हैं I was wearing one of the gemstones on my finger that was an emerald stone and Guruji told me एक ही पाया हुआ है. I said, गुरुजी ये पत्थर है, emerald पत्थर है. कहते हैं इसਨੂੰ उतार दे. He said ए नहीं पाया करो, ए ग्रह हो, ए तुसी ग्रह पाए हुए ने and इनको उतार दो. So I immediately took off my ring and kept with me. So he asked me to sit and he asked me, "Das tenu ki chaida hai?" And trust me, at that point of time, I wanted everything from A to Z. So it was not that I didn't have, I had everything, but nothing was in its completion. Nothing was as satisfactory as it should have been. And everything wanted completion. And I was having no mental peace. So I told Guruji, गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए. फिर से उन्होंने मुझसे पूछा 10 तेनु की चाहिए है. I said गुरुजी आपकी blessings and trust me Sangat ji, since that day I got the world. I mean Guruji changed every part of it, every part of my life, every aspect of my life and turned it around. How the journey started, then I will tell you. And I when I started from my house, तो मैंने सोचा था कि मैं आज बहुत सारे questions पूछूंगी गुरुजी से. I had so many doubts, so many queries. But जब मैं वहाँ जाके उनको देखा, he was so magnanimous, he was so good looking, so amazing that I forgot everything. I thought it was surely there that there was something so divine which is there. And I was literally mesmerized, you know, it was as if it was a calling of the soul. So I came back and हम लोग आगे लेकर आते थे गुरुजी से. I felt very good. So I started going again and again to Guruji. So it was such that I used to go 2 times a week, maybe on Thursdays and on Sundays. And, you know, the attachment with him had become so much that you were pulled towards it. You know, it was like a force, gravitational force that pulled it. So Guruji had that kind of, you know, magnanimity that we were pulled to him. And how the time went on and then it was in January 2006. So my father was very sick and he got admitted to the hospital. He had multiple organ failure because of pneumonia and he was put on the ventilator. So Guruji tab Thursday onwards hote the darbar mein, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So it was on Monday that my dad had got admitted, but I couldn't get a chance to see Guruji because day nahi tha Thursday se pehle. So on Thursday I went to Guruji.
And when I was sitting there, when I was sitting there in the mandir, I my eyes were shut and I was just kind of sitting quiet. So a vision came to me in which I saw that Guruji is going with me to the hospital and taking off the ventilator from my father's forehead and saying, "एक ही लाया हुआ है, ऐसी लोड नहीं है, जा ब्लेस की था." सो हम लोग ह्यूमंस होते हैं, हम फिर भी बिलीव नहीं करते हैं कि हमारे को ब्लेसिंग हो गई है. सो स्टिल वाइल टेकिंग आ गया अगेन, आई टॉक टू गुरुजी. गुरुजी, मेरे फादर बहुत अनवेल है एंड वो हॉस्पिटलाइज्ड है. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे. सो माय हस्बैंड सेड, नाउ आई एम श्योर दैट योर डैड doesn't have a big life, क्योंकि गुरुजी ने कुछ भी नहीं बोला है. एंड आई केम बैक होम एंड इट वाज फ्राइडे, sorry, it was a Thursday. And you won't believe, on that very day, I mean, the next day when I went to the hospital, the ventilator had been removed. And at the same time, when I was getting a vision. So I was so happy, immensely happy, that my father was cured. And at that very time, so Bhagwan हमेशा आपको bless करते हैं, but we are so petty in our own world that we don't actually acknowledge it. So on the next day, I went to Guruji again to say thank you to him. कि Guruji, thank you so much. पापा बिल्कुल ठीक हो गए. तो गुरुजी मुझे कहते हैं, देखा कर देता. So it was such a immense, feeling. And at that point of time, my faith got resurrected. It was like a complete surrender. And trust me, गुरुजी के पास जाके ऐसे लगता था जैसे आपको एक पूरी दुनिया एक तरफ और एक तरफ एक तरफ गुरुजी. So I believe that who can proclaim to see God, but I say that गुरुजी को मैंने देखा है, met भगवान. देखिए, हमारे को बाकी भगवान, मतलब मंदिर में आप जाते हैं, राम जी, कृष्ण जी, सबको देखते हैं, हमने किसी को देखा नहीं है. We have just heard about them. But here I have seen live God sitting amongst us and taking care of all our needs, all our worries, and sorting out everything of life. And so how, this journey further started, and it was such a beautiful time that I spent with him. There were few people in our lives who were kind of very negative for us, and I always didn't want them in my life because they were creating disturbances in the family and causing problems. So gradually those people got away. I had felt that जब आप गुरुजी के पास आते हो, जो लोग, चाहे वो आपके friends हो, चाहे वो आपके relatives हो, चाहे वो आपके near dear ones हो, आपको पता भी नहीं कौन है, जो आपसे jealous हैं, जो आपके लिए negative सोचते हैं, गुरुजी कभी भी उनको आपकी लाइफ में नहीं रहने देते हैं. Because he blesses you, he blesses you in isolation. He removes all the negative elements around you and he makes your life hassle free. So that's what happened with me also in my experience. And then एक बारी गुरुजी ने मुझे बोला कि तब मेनका गांधी and all also there all the time. तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मेनका की एग्जीबिशन है, पेंटिंग्स की उन्होंने लगाई हुई है हायत में, आप जाके 2 पेंटिंग्स खरीद के आओ. I said, Hanji Guruji. So I went to the exhibition with my husband, and every painting was very, very expensive. I didn't have much money that time in my pocket. I was just carrying, a fixed amount of money, and the paintings were very, very highly priced. They were the old Ravi Shankar ji, Ram Mohan Roy paintings were there, and all original. So I was just wondering कि मुझे गुरुजी का हुक्म तो मानना है, मेरे को 2 पेंटिंग्स तो खरीदनी ही है. But suddenly I saw there were 2 paintings which were in the corner of the exhibition. I just picked them up, and to my surprise, they were just the same cost जितने पैसे मेरे पास थे. So I brought them home, and उनमें से एक पेंटिंग लॉर्ड शिवा की थी, काशी विश्वनाथ, बनारस. एंड मैंने गुरुजी को जब अगले दिन आई वेंट टू द मंदिर, आई सेड, गुरुजी मैंने पेंटिंग्स ले ली हैं, आपने मुझे बोला था जाने के लिए, लेने के लिए, मैंने ले ली हैं. तो ही कॉल्ड मेनका गांधी एंड ही सेड, मेनका इधर आ, शिवा घर ले आई है तेरे उधर से. सो इट वाज ऑफ शिव जी, बट गुरुजी को मैंने नहीं बोला था. एंड ही सेड, जा ए ना, मेनका शिवा लेके आ गई है. एंड ही वाज स्माइलिंग एट मी. सो गुरुजी हमारे
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या चल रहा है, ही नोज एवरीथिंग. ही जस्ट knows, I mean, he's like a scanner. जब आप इधर आते हैं तो गुरु जी को हमारा सब कुछ पता होता है. So my own personal feeling and experience says that हमारे को तो पता भी नहीं है कि हम उनसे क्या मांग रहे हैं. As I told you that when I went to him, I was in very low mental this thing, because there was no completion in lot of things. But Guruji ने उसको, may it be the emotional front, may it be the health front, may it be the financial front, Guruji ने सबको बहुत बहुत बेस्ट कर दिया, whatever best. मेरे को बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस होता था, एंड नेबुलाइजर्स एंड ऑल ने भी असर करना बंद कर दिया था. सो वन डे व्हेन आई वेंट टू एम्पायर स्टेट, गुरुजी ने मुझे बोला कि आई वाज पैंटिंग, यू नो, आई वाज फीलिंग सो ब्रेथलेस. आई सेड, गुरुजी मुझे ना बहुत ब्रोंकाइटिस होता है, क्या मैं लोटा लेके आ जाऊं ब्लेस कराने के लिए आपसे? कहते तेरे को कोई लोड नहीं है, तू तेनू कुछ नहीं है. ऐसे, गुरुजी आपको पता नहीं है कि मुझे कुछ नहीं है, मेरे को तो इतना ब्रोंकाइटिस हो रहा है. कहते नहीं, तेनू कुछ नहीं है. And trust me, today is that day when I actually don't have anything, you know. I don't have any bronchitis. I don't have any asthma. And there are no nebulizers. There are no steroids that I'm using or taking. It's sometimes during the allergic weather or something that I need to take some, maybe once or twice, the allergic medicine. But everything is finally fine. And I mean, what I mean to say is कि गुरुजी आपके बोलने से पहले ही आपके सारी चीजें कर देते हैं. आपके मन में भी जो एक इनर मोस्ट कॉर्नर में कोई थॉट है, गुरुजी आपका उसका भी पूरा करते हैं. यू नो, इफ इट इज गुड फॉर यू, ही विल ग्रांट इट. हमारे को यही एक ऐसी जगह है जहाँ मांगने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी आर आस्किंग फ्रॉम गुरुजी. ही इज ऑलरेडी ब्लेसिंग अस, एंड इफ वी हैव फेथ इन हिम, if we surrender to him, that whatever he is giving it to us is so immense that I don't think we should be needing anything more than that, because उनको तो सब पता है हमें क्या चाहिए. See, we have a very myopic vision in which we cannot see beyond. हम ये मांग लेंगे, गुरुजी पैसा दे दो, गुरुजी ये दे दो. But Guruji always blesses you with life, with health, and rest everything follows. And उनको पता है हमें क्या देना है, right time क्या है और कितना देना है, because we don't even know what we are asking for. Suppose we are asking for money and we don't have life, then what's the point of it? So Guruji he is that God जिन्हें सबका पता है कि उनको क्या जरूरत है. So I'll continue with my more this thing. एक बारी my husband always used to tell me that you're going to Guruji so much, it's not done, वहीं पे जाके रह ले तू. I said I have no problem. So एक बारी he told me, चलो अगर गुरुजी का इतना तुम्हारे को वो है, तो अगर गुरुजी में एक्चुअल में उनको सब पता चलता है तो वो मेरी सिस्टर का नाम बताए. So I said okay, done. So and you won't believe, ये बात हमारी घर में हुई थी. उसके 2-2.5 महीने के बाद his sister came from London. She was in London and she was a doctor. So she came and उसका नाम है Manu. Her nickname is Manu and real name is Chetna. And I remember it was a Guru Purnima day, so I took her to Bada Mandir to get her blessed from Guruji, because she was having some problem with her in-laws. So I told her that let's go to Guruji and take his blessings. The moment I reached there, it was a Guru Purnima day. I reached there and Guruji asked me, "ए कौन है?" I said, "Guruji, ये ना मेरी sister-in-law है." कहते ननान है तेरी? I said, हाँ जी गुरुजी. कहते उसको देखते ही जैसे उसने गुरुजी के चरण छुए, आ गई डॉक्टर चेतना मेहता, BDS, बत्ती दंदा दा सर्वनाश. And she was so shocked कि मेरा नाम कैसे पता है इनको. So he answered my husband's question, which he had talked about 2 months back, and I had also forgotten that Guruji अगर बताएंगे तभी मैं उनको मानूंगा. So that's how he answered your queries, because आप भूल जाते हो but वो नहीं भूलते. And I always used to tell Guruji, my husband's name is Amit, I used to tell Guruji, मुझे अमित मना करते हैं, ज़्यादा नहीं जाओ, because I had a very small daughter who was 4 years old and he had to really take care of her. So मैं बहुत जब जाती थी मुझे कहता था, you should not go so often, decrease your frequency.
तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मुझे अमित तो कभी कभी मना करता है, आने नहीं देता है। कहती कोई गल नहीं, वो बहुत चंगा मुंडा है, उसने मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता है, नहीं आने देते। कहते नहीं, वो बहुत चंगा मुंडा है। And trust me, Guruji has really changed everything around. I mean, his faith is also the same, I mean, as mine. And you know, for us, I have to say this, that Guruji has really changed my life by 360-degree turn. The same lady who had so much, mental strength had really gone down. It was like, you were into that state of low feeling. Today I'm the same person who can actually give depression to people, in the sense who has become so positive and brimming with energy that it's just the 100% degree, 100% change, 360-degree turn. And then I'll tell you more. एक बारी, अच्छा गुरुजी ना मेरे से हमेशा मेरे फादर का सत्संग करवाते थे। कोई भी आता था, कोई भी मिनिस्टर आते थे वहां पे, कोई भी VIPs आते थे, तो गुरुजी always used to tell me, तो अपना प्यो दा सत्संग शेयर कर। And I used to tell about my father, that how Guruji could save my father from death, and उनका वेंटिलेटर हटा था। तो एक बारी ये सारे लोग बैठे हुए थे, बड़े VIPs were all there. So मैं घर से सोच के गई थी कि मैं ना गुरुजी आज आपको I love you बोलूंगी, because I really wanted to tell him. And जब ये सब लोग बैठे थे, तो मैंने मन में सोचा कि आज तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, because everybody is around me and how can I talk to Guruji like this. आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरा सत्संग उनको मैंने सुना के खत्म किया, तो मुझे गुरुजी कहते हैं, जब तू हाई सी ते होर गल सी, हुन तू गुरु बिना नहीं रह सकती। सो इट इज द सेम दैट आई वांटेड टू टेल हिम। आई सेड गुरुजी आई लव यू, एंड मुझे आज आपको बोलना था, बट मैं नहीं बोल पाई बिकॉज एवरीबडी वाज देयर। कहते हैं लव यू, लव यू। सो इतने बड़े भगवान एक हमारे लेवल पे आके इतने हम्बल होके हमसे बात कर रहे हैं। व्हाट बेटर यू कैन आस्क फॉर फ्रॉम योर लाइफ। I mean, he is that God who is knowing your inner personal thoughts, inner personal feelings, and who stands by you. लेकिन अगर आपके साथ गुरुजी हैं, तो ट्रस्ट में पूरी दुनिया एक तरफ और गुरुजी का ऑरा और गुरुजी एक तरफ। I mean, Guruji is that Bhagwan. He is that Malik of the universe who takes care of all of us in the best possible way. All we can do here is to just say thank you to Guruji and surrender to him completely. अच्छा, I used to tell Guruji, Guruji मुझे ना पतला कर दो, बहुत बोलती थी मैं उनको, क्योंकि I was quite fat. I am also fat now, but better than that time. तो Guruji मुझे कहते थे, जा दफा हो, सैर करया कर। So दफा हो, फिर मुझे बोलते कि मैं दफा हो भी तेरे वेट को बोल रहा हूँ। And one day what happened, my parents, I'm the only daughter of my parents, and they were staying at Ashok Vihar that time, and I was in GK. So I was sitting there in the mandir, and Guruji told me कि किधर रहंदे ने तेरे parents? I said, Guruji, Ashok Vihar। कहते उन्होंने ना नेड़े लिया। I was so happy because that was one of my biggest desires, that my parents should shift with near me, because they would also have support in the old age, and I would also have support from them. You won't believe, in about a span of 2 to 3 months time, they shifted from North Delhi to the South Delhi. And it has never happened that when you're shifting from that area to South Delhi, you're saving money. Rather, instead of adding more money in buying a flat or in buying a house, some of the money got into their pocket. It was saved, and from the second floor they could get a ground floor, which was very, very convenient as compared to the house that they were in. So such is the Guruji. वो हमारी सारी worries को, सारी problems को, सारी हमारी thoughts and desires को take care करते हैं, उनको पूरा करते हैं। And Guruji, on this day of Guru Purnima, एक बारी मुझे चंद्रमा में I could see a photo, I mean a picture, I could see Guruji. So I told घर में आके कि यार तो Guruji मुझे गुरु पूर्णिमा वाले दिन नजर आ रहे हैं चंद्रमा में। So my husband said, why are you are always obsessed? So that is why you can see. You won't believe, Sangaji, in the television that day, in the news channel, they were saying that we could see someone who was a bit bald in the Chandrama. So how he authenticates everything. And गुरुजी की जब खुशबू आप उनके अगर आप उनके पास चरण छूने जाते थे या उनके पास खड़े होते थे, उनकी बॉडी में से एक बहुत
beautiful fragrance आती थी, which was so overwhelming. And you could love it. The aura was so awesome that you could feel that this is definitely that divine thing. You never wanted to come back from there जब गुरुजी हमारे साथ होते थे. So that's what he जहां पर वो है तो वहां पर कोई नेगेटिविटी तो वैसे भी नहीं रह सकती. एंड गुरुजी हमें कहते थे कि पूछो मत हमसे कुछ से यहाँ आके, बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग हियर आई नो व्हाट यू वांट. गुरुजी व्हाट आई फील इज इतने बड़े पावर हाउस है, इतना बड़ा सोर्स ऑफ पावर है कि अगर हम उनसे कोई नेगेटिविटी बात करते तो वो भी उसको भी ब्लेसिंग मिल जाती. सो द बेस्ट थिंग इज टू कीप क्वाइट एंड टॉक टू हिम टेलीपैथिकली. गुरुजी हमेशा ये बात बोलते थे कि अपना कनेक्ट खुद बनाओ, अपना कनेक्शन खुद बनाओ. देयर इज नो मीडिएटर, देयर इज नो मीडियम. यू एंड मी आर वन. यू शुड हैव योर ओन कनेक्शन. सो नो पॉइंट गोइंग फ्रॉम हियर एंड देयर और किसी के थ्रू कुछ कराना. आप डायरेक्ट गुरुजी के साथ अपना बनाएं और अपना खुद कनेक्शन करिए, because there's nothing better than that. And there's so much to say, so much to tell. एक बारी मैं आपको बताती हूँ, it was गुरुजी ने मुझे बोला, we were all sitting and गुरुजी said कि तू ना अपने experiences जो यहाँ पर तेरे को हुए हैं वो ना मेरे को तू लिख के लेके आ. एक उनको कंपाइल करके मेरे को लिख के ला के दे. So next day I wrote it all on a piece of paper and I took it to Guruji. So Guruji told me ए की करे तू पुठे काम कर दिए, तू इसको CD में कंपाइल करके ले. I felt very ashamed and sorry that why I did on a paper. I should have got it in a CD. So next day I thought कि अगर आज मैं CD में लेके जाऊंगी मैं गुरुजी को नहीं दूंगी, because गुरुजी would not like it कि फिर से ऐसे गलतियां कर रहे हैं और. So but Guruji knows everything what's going in our heart, our own inner conversations. गुरुजी बिल्कुल मेरे को सामने दिखे जैसे ही एंटर करा, कहते हैं ले आइए तू अपना CD. And he lovingly took the CD from me and kept it with him. So our satsangs actually they came in the Light of Divinity book first edition, जिसका हमें पता भी नहीं था कि गुरुजी हमारे बीच में से physically he won't be there. And see, he had told a few people or maybe whomsoever he wanted to write their own satsangs and his own experiences and to compile them and give it, because he was already knowing that it has to come in the book, in the Light of Divinity. And we had no idea, because हमें क्या पता था गुरुजी ये सब किसके लिए करा रहे हैं. So there is no end to his blessings. I mean, जब आप मतलब financial, physical, every aspect, economical, हर चीज changed completely. Because idhar aake we could actually be, I feel we are so lucky that out of the entire lot of this world, we are the lucky few chosen ones जो गुरुजी की शरण में है, जो गुरुजी की ग्रेस में है. एंड कैसे गुरुजी हर चीज आपकी लाइफ की सॉर्ट आउट कर देते हैं, विदाउट इवन यू फीलिंग इट. आपको नहीं पता हाउ मच ही गिव्स यू, बिकॉज आपको जितनी वो ब्लेसिंग इमेंस देते हैं शायद हमारे को वो उसके एंटाइटल्ड भी नहीं हो, बट ही गिव्स इट सो मच. सो what I feel कि हम अगर उनकी महिमा कर रहे हैं, बस उससे बड़ा थैंक्स कुछ नहीं है. यहाँ पर आपको थैंक्स करना है और आपको महिमा करनी है. एंड गुरुजी खुद ये बात कहते थे कि there are three things which are very important in this time of Kali Yuga. One is Gupt Dan, Gupt Path and Gupt Seva. So Gupt Dan is when you are donating, your left hand is donating, the right shouldn't know. Gupt part is when you are doing your part and even your lips shouldn't move. It is the hidden thing, the part should go all the time but your lips shouldn't move. And Gupt Seva is husband wife का और wife husband के लिए एक दूसरे के लिए help करें, and they should bring up their children in the best way. So that is the whole essence. गुरुजी हमारे को सीधी राह पे चलने के लिए बोलते हैं, to be a good human being and to have a pure and a clean heart. And I'm sure that if you have a clean heart, if you are truthful to yourself and to others, if you're harmless, if you are a good soul, if you're a good human being, at least we can try to be one. Then Guruji आपके साथ endlessly he is taking care of you. Otherwise also he takes care. उनके पास जो भी आता है वो bless होके ही जाता है.
there is nobody who goes here from without taking anything, because वो तो बहुत ही इज देयर फॉर ब्लेसिंग्स ओनली, वो भगवान है, वो हमारे को हमेशा हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे हमेशा ध्यान कर रहे हैं, हमेशा ब्लेस कर रहे हैं. बट वी हैव टू बी उनके इतने बड़े भगवान के भक्त होने के लायक भी हमें बनना बहुत जरूरी है. Because we have to be clean, you know, internally and outwardly. Our soul should be pure. That's what I can feel. And we have to be always thankful to Him, always be in a state of gratitude. आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि कोई मिरेकल्स अगर हमें चाहिए, मिरेकल सबसे बड़ा ये है कि हम अपने घर में बैठ के फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग एवरीथिंग इन अ हैंड, द फूड, द हेल्प, everything is with us. So that's Guruji. आप अदरवाइज अगर एक भी दिन हमारे को हॉस्पिटल जाके रहना पड़ जाए, सो देन वी कैन कम टू नो द वैल्यू ऑफ ऑल दिस. सो बिगेस्ट मिरेकल इज दैट वी ऑल आर सेफ एंड हैप्पी. एंड ट्रस्ट मी, अगर टाइम जो भी है बाहर, चाहे कोविड इज गोइंग ऑन एंड अदर इनसिक्योरिटीज आर गोइंग ऑन, जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो देयर इज नो बडी हु कैन take away our peace and our happiness, because Guruji is all for us. वो हम सबको अपनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपनी कैनोपी में. वी हैव टू बी वर्दी ऑफ हिज लव, बिकॉज उनसे प्यारे भगवान, उनसे अमेजिंग भगवान, और मैं तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैंने किसी को सोच भी सकती हूँ अदर देन हिम. He is the world to us, and he only has the capacity to change our entire life. You know, he cures your illnesses. He मतलब एक ही छोटी सी चीज है एक बीमारी को ठीक करना, because गुरुजी हमारा each and everything he sorts out. हमारे को एक complete surrender करना है उनके आगे. So that's how he does. You know, he is amazing. You know, simply I can say that we all have to be thankful to him. And I believe कि अगर आप यहाँ पर आ गए हो, तो आपकी सारी वरीज, आप सब कुछ उनके चरण में डाल दो. उनको पता है आपकी लाइफ को कैसे चलाना है. He is the runner of our life. अगर अपने आप लाइफ का पूरा चार्ज उनको दे देते हैं, वो उसको एक बेस्ट वे के अंदर गुरुजी निकालते हैं, उसको बेस्ट वे में आपकी लाइफ को चलाते हैं. यू कांट इवन यू नो कॉम्प्रीहेंड कि वो आपका किस तरह से हर चीज ही डज इट. यू वोंट बिलीव, आई मीन गुरुजी आपको कितना टाइमली हर चीज करते हैं. लाइक आई बिलीव कि जब आप इधर आ जाते हो, तो nothing is by chance, nothing is a coincidence, everything is by his choice. I'll share one more satsang. During this lockdown period, before it was lockdown, I had gone to Goa with my family, 3 days. And see, we didn't know कि आगे lockdown हो जाएगा या flights बंद हो जाएंगी. On the we were there for 3 days, 18th, 19th and 20th March. Now on 20th March, I was supposed to go to Bombay because my daughter stays there, so I had to be in Bombay with her. But somehow I just thought that one of my friends, she said to me that, why are you here in Bombay? You should come back to your house in Delhi, because it's a lockdown phase and you never know how much it's going to extend. So that also again is Guruji's way of signaling it to you that no, you should be back to your homes. And you won't believe, on 20th only, I got my flight done from Bombay to Delhi, and I was here in Delhi on 20th night, and just thinking कि क्या पता कल flights ना चलें. And trust me, from next day there was no flight that was operated. So how he puts you in the right place at the right time. All you have to do is trust him completely, trust his timings, trust him. That's all we can do. He is that master of the universe who always has a blessing to give us, who always blesses us in the best way, in the best possible way. He takes care of your family. Guruji takes care of your kith and kins. आपके जो भी आसपास है, आप वो सब blessed हो जाते हैं अगर गुरुजी और हमें आगे. So nothing to worry. हमें सिर्फ इंसान एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है. That's all I can say. And there is no end to the satsang, and there are many in the queue. I won't take much time. I've already taken, because Guruji भी मुझे कहते थे short 10 सेकंड. So if we get to know the next time, thank you and wish you all a very happy and safe life. And trust me, हमारे साथ गुरुजी हैं, so no worries at all.
Thank you, Sangat ji. Thank you so much. नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट उषा सिंह आंटी कि वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। ये गुरु जी का बर्थडे वीक मंथ है और गुरु जी हमेशा इतने खुश होते थे, सारी संगत को ब्लेसिंग देते थे और ब्यूटीफुली सेलिब्रेट भी करवाते थे सबको। तो जैसे मैंने पिछली बार कहा था, तो मैं ये खत्म करूंगी ये सत्संग जो मैंने कोरोना वायरस का शेयर किया था। आपको मालूम है मैं यहाँ यूएस सियाटल में हूँ और काफी यहाँ फैला हुआ है सब जगह, और मेरे सारे बच्चे मोस्टली सब डॉक्टर्स ही हैं, डेंटिस्ट हैं। तो इस समय आप समझ सकते हैं कि मतलब एज अ मदर थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड तो होता है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ जब गुरुजी ने की ही कृपा से सब डॉक्टर्स हैं, तो गुरुजी हर एक डॉक्टर को दुनिया में सबको प्रोटेक्ट करेंगे गुरुजी, क्योंकि इस समय उनकी बहुत जरूरत है। और सारी संगत को, नॉन संगत को, सबको कोरोना वायरस से निकाल कर गुरुजी हेल्प करेंगे। मेरी ये स्पेशल उस दिन गुरुजी की बर्थडे के दिन मैंने प्रे किया था गुरुजी से। और उसके बाद मैंने जैसे बोला था कि मेरे सन इन लॉ जो डॉक्टर हैं नहीं, वो तो फाइनेंस में है, तो मेरी डॉटर डॉक्टर है, तो वो जाती है हॉस्पिटल में। और जैसे मैंने बताया था कि उनको कोरोना पॉजिटिव आया था, वो गुरु पूर्णिमा से 3-4 दिन पहले की बात है। और संगत में हम लोग बैठने वाले थे, उसी समय ये न्यूज आई थी, तो थोड़ा सा तो परेशानी हुई थी। पर जैसे गुरुजी ओवरटेक कर लेते हैं सब कुछ, इमोशंस, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल। संगत में सत्संग जैसे जूम का हो रहा था, मतलब मुझे कोई जैसे सब कुछ डिलीट हो गया था, मैं वैसे ही सब कुछ नॉर्मली सब कुछ हो रहा था। और 2 दिन तक वो उसमें रहे क्वारंटीन में, और उनको कोई भी जरा से भी सिम्टम्स नहीं थे। तो वो बार बार यही कह रहे थे कि जो है मैं तो कहीं घर से निकला भी नहीं, सब कुछ ऑर्डर करता है हम लोग, और ये नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग टेस्ट, ये वो। मैंने कहा कोई नहीं, मैं जूम का उनको लिंक दे दिया था, और मैं शब्द वगैरह वो भी सब कुछ जुड़े हुए हैं। तो हमने कहा आप ये टाइम अच्छी तरह से बिताओ और गुरु जी को प्रे करो, ये जस्ट यूटिलाइज दिस टाइम ब्यूटिफुली। और गुरु जी का स्वरूप उन्होंने रखा था अपने पास, और सुबह सुबह मंत्र जाप वो कभी कभी वैसे भी ज्वाइन कर लेते थे। यहाँ पे 6:30 सुबह होती है, तो ऐसे चल रहा था। और 2-3 दिन के बाद वो खुद ही ड्राइव करके गए, अपना चेकअप कराया उन्होंने। चेकअप क्या मतलब, वो कार से ही, ड्राइविंग से ही होता है टेस्ट, वो हो गया। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनकी रिपोर्ट आई, नेगेटिव था। पर एज ए डॉक्टर, आप मालूम है मेरी डॉटर बहुत ही केयरफुल रहना चाहती है, क्योंकि हम लोग सब यही हैं, दूसरे घर में रहते हैं, पर फिर भी उसको लगता है कि हम लोग की एज की वजह से ओवर 60 परेशान रहती है। तो उसने कहा कि नहीं, 2 बार नेगेटिव आना चाहिए रिपोर्ट। तो थोड़े दिनों बाद उन्होंने फिर कराया और वो दूसरा भी नेगेटिव आया। तो ये कौन कर सकता है? जिसका पॉजिटिव आया हो उसका 2 दिन के बाद ही किस तरह से नेगेटिव गुरुजी ने कराया, और उसके बाद फिर उन्होंने नेगेटिव कराया, ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी हैं हमारे, उनको जितना भी थैंक्स करें, मैं अपने एक एक रोम से भी उनको थैंक्स करूं वो भी कम है, एक एक सेल से, एक एक मतलब मेरा होल बीइंग गुरुजी को दिन रात अगर थैंक्स करे वो भी कम है। क्योंकि जो गुरुजी अपनी संगत को ऐसे प्यार से उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? और उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे गुरुजी हमेशा आसपास है। मैंने कुछ भी नहीं कहा था गुरुजी से कि ठीक कर दीजिए जो है, बस मैं प्रे करती थी कि बस गुरुजी से जुड़े रहें गुरुजी, बस शक्ति दें गुरुजी, दैट्स ऑल, और नॉर्मल रहें सब। एंड इस समय गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें, सारी संगत के घर वालों को ब्लेस करें, सारी संगत वर्ल्ड वाइड, नॉन संगत पूरी दुनिया में जो जो इससे सफर कर रहे हैं, जो जो इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं इस समय, गुरुजी उनकी बुद्धि ठीक रखिए और उनको सही रास्ता दिखाइए। ये बहुत ही इस टाइम अनसर्टेन टाइम है गुरुजी, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे फैमिली के साथ भी हुआ था कुछ दिन, इतनी परेशानी थी सभी को, जितने एक्सटेंडेड फैमिली हैं सब लोग। तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन जब किसी का पॉजिटिव आता है घर में। तो ये मेरा सत्संग था, बस एक छोटा सा मैं सत्संग उन्हीं के बारे में शेयर करूंगी कि जो सेम बेटी है जिसकी वजह से हम गुरुजी के दरबार में, गुरुजी ने बुलाया, उसको एस्थमा ठीक किया था जिसका,
तो बहुत ही वो भी क्लोज है, गुरुजी ने उसको लोटा ब्लेस करा हुआ था, अभी भी रखा हुआ है उसके पास। कितने साल हो गए, 20 25 22 23 साल हो गए, 25 साल पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। पर वो उसकी जब शादी तय हुई, वो भी मैं बताती हूँ, बड़ी की शादी मैंने शेयर करी है, इसकी जब शादी तय हुई थी गुरुजी ने कराया सब कुछ। तो मैं बार बार गुरुजी से कहती थी, गुरुजी जो भी मेरे फैमिली से जुड़े पहले वो आपसे जुड़े गुरुजी, क्योंकि हम सब आपसे जुड़े हैं। मुझे कंफर्टेबल नहीं लगेगा एक भी बंदा कोई आए जिसको अच्छा ना लगे, वो हम लोगों के साथ ना बैठ पाए गुरुजी के दरबार में। तो गुरुजी प्लीज आप अगर सही हो तभी आप जोड़ना, नहीं तो आप कोई विघ्न डाल देना, ऐसे मैं बार बार कहती थी गुरुजी से। तो उसकी जब शादी तय हुई तो 2 डेट्स थी, अक्टूबर 1 एंड अक्टूबर 8। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी डेट मैं बुक करूं। तो जब गुरुजी की कृपा से जब बड़ी बेटी का हुआ था तो उन्होंने बताया था, ब्लेस करी थी डेट जुलाई 14 की। तो मुझे इस समय फिर वही याद आ रहा था, मैं बार बार गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हूँ और बोलूं, गुरुजी उस समय आपने बताया था, आप भी आपको ही मुझे बताना है, क्योंकि हर बात मैं आपसे शेयर करती हूँ, किसी से नहीं पूछती हूँ, मेरे लिए आप ही सब कुछ है गुरुजी, आप गाइड करो गुरुजी, मैं क्या करूँ, कौन सी डेट रखूँ, आप हेड ऑफ द फैमिली है, आप जो कहेंगे वही होगा। एनीवे मैंने वो 2 डेट बुक कराई थी वेन्यू पर। मैं रोटी प्रसाद बना रही थी घर पर, मेरे हस्बैंड कहीं दूर बैठे हुए थे, हम दोनों जन अकेले ही थे। रोटी बनाई थी और बार बार अपने हस्बैंड को कह रही थी कि गुरुजी बता नहीं रहे हैं, कब बताएंगे और डेट मुझे कंफर्म करनी है, बार बार ये कही जा रही थी मैं जोर जोर से। और जब मैं रोटी बना रही थी तो आप बिलीव करेंगे, रोटी में पूरा नंबर 1 बन गया एंड मैं चीखने लगी। मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा आप देखिए क्या मैं सपना देख रही हूँ? तो कहते हाँ ये तो नंबर 1 है, गुरुजी ने बता दिया, तुम कह रही थी 1 को कि 8 को, तो गुरुजी ने कह दिया 1 अक्टूबर को शादी है। मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ी खुश हो गई, गुरुजी को बहुत थैंक यू किया। मैंने राइट अवे वो वेन्यू जहाँ था वहाँ कॉल किया और मैंने कहा कि मैंने 2 डेट बुक कराई थी, तो अब मैं कंफर्म कर रही हूँ अक्टूबर 1 की। तो कहते हैं मैम आई एम सो सॉरी, आपने 2 डेट कराई थी पर आपने कंफर्म नहीं किया था, पर किसी ने और ने ले लिया है अक्टूबर 1, तो हमने उनका ऑलरेडी जो है बुक कर दिया है, तो आपके लिए अक्टूबर 8 है बस। तो मैंने काफी इंसिस्ट किया, तो खैर एनीवे मैं थोड़ी निराश भी हुई, मैं गुरुजी के सामने फिर बैठ गई, मैंने कहा पता नहीं क्या करना है गुरुजी। अचानक ही मेरे दिल में जैसे एक ख्याल आया, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, गुरुजी ने 1 अक्टूबर का है ना, तो गुरुजी अपने सामने शादी करा लेंगे। तो मैंने अपनी बेटी और अपने सन इन लॉ को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है बेटा, ये डेट गुरुजी ने दी है और मुझे अंदर से लगा है कि गुरुजी चाहते हैं उनके सामने शादी हो, तो यहीं गुरुजी के दरबार में कोई भी नहीं होगा। ये बहुत पर्सनल जो मैं गुरुजी मेरे से कह रहे हैं शेयर करने की, जो मैं ज्यादा शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि आप समझते हैं कि कितना पर्सनल ये सत्संग है मेरा, पर गुरुजी के सामने कुछ भी पर्सनल नहीं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है मैम, जैसे भी आप कहेंगे वैसे कर लेंगे हम लोग। तो हमारे एक संगत के ही पंडित जी हैं, उनका बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं कभी शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे पंडितों से दूर रहा करो, तो हम लोग कभी भी पंडितों के पास नहीं जाते थे, कभी भी। मतलब जब से गुरुजी से जुड़े सारी पत्रियां हम लोगों ने फेंक दी थी, कुछ भी नहीं पूछते थे, ना शादी में कुछ उनका कुंडली मिलाना या कोई दिन बताना, ये सब कुछ गुरुजी के हिसाब से होता था। तो वो पंडित जी किसी के थ्रू हमारे यहाँ एक बार संगत में आए थे और बगैर चाय पिए वो चले गए। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे हस्बैंड हम दोनों जन एक दूसरे को देखने लगे कि पंडित क्यों आ गए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। एनीवे वो चले गए, संगत में कोई भी आ सकता है, तो चले गए। नेक्स्ट डे वो आए तो वो रुके रहे, उन्होंने पूरा चाय प्रसाद पिया, उन्होंने लंगर किया, सब कुछ किया उन्होंने, और अचानक ही खड़े होकर के कहती है मैं आज सत्संग शेयर करूंगा। जब शेयरिंग हो रही थी तो हम लोग थोड़ा परेशान हो गए कि पंडित जी क्या शेयर करेंगे, मुझे यहाँ ज्ञान की बातें नहीं करनी है, सत्संग ही शेयर करना है। तो वो खड़े हो गए, वो कहने लगे कि मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम आया था मुझे बड़ा रेस्टलेस लगा था, मैं चला गया, फिर मैं जब सेकंड टाइम आया हूँ थर्सडे को, तो मुझे गुरुजी ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। कहते हैं यहीं पर सब कुछ है और गुरुजी ही सब कुछ है, सारा कुछ वो रो रो के उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो गुरुजी का कुछ भी होता है वो हमेशा आते हैं और सत्संग करते हैं और लंगर खाते हैं। तो गुरुजी ने एक पंडित को भी कन्वर्ट कर दिया अपने संगत बना करके।
तो वो बहुत ही संगत से जुड़े हुए हैं। तो उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, तो कहते कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा और सुबह सुबह हम लोग करेंगे 5 बजे, जैसे अमृत वेला होता है। गुरुजी ने वो टाइम निकाला और उस समय देखिए शादी का टाइम था, कोई भी घर में आ सकता था, राइट, कोई भी टाइम पर। गुरुजी ने इतना अर्ली मॉर्निंग करा कि जिससे किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, खाली उनके पेरेंट्स, वो और हमारी फैमिली जो थी और हमारे 1-2 जो भी रिश्तेदार आए थे, हम सब ने अपने ही घर पर ही बैठ करके मालाएं बनाई, अपने ही घर में बैठ के सारा लंगर बनाया, सब कुछ वैसे ही किया। और सारे विधि विधान से गुरुजी ने इतने ब्यूटीफुली सुबह सुबह वो उनकी अपने सामने उनकी शादी कराई। और जो परिक्रमा होती है वो पूरा फायर प्लेस के अराउंड उन्होंने गुरुजी के अराउंड फेरे लिए और इतने ब्यूटीफुली गुरुजी ने सेलिब्रेट किया। हम लोगों ने भी एंजॉय किया, क्योंकि कभी एंजॉय नहीं कर सकते आप शादी में, राइट, आप इतने बिजी होते हैं, भागते रहते हैं। ऐसा लग रहा था ऐसे गुरुजी हमारे परम पिता हैं, हम ऊपर हमारे बैठे हैं वहां पर और वही सब कुछ करा रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग से सब कुछ हो रहा है। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, मैं वो कभी भूल नहीं सकती हूँ। और वो गुरुजी को थैंक्स जितना भी करूं उतना कम है। किस तरह से गुरुजी, आप जब उनसे कुछ पूछते हो और वो बताते हैं, और जब वो बताते हैं तो गुरुजी की पत्थर की लकीर होती है, वो भी होना चाहिए कि उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे आपको कन्वीनियंट हो चाहे ना हो। गुरुजी कहते थे मुझे मांगो नहीं मानो, अगर तुम उनसे कुछ गाइडेंस ले रहे हो तो उनकी बात भी माननी चाहिए, जो जो वो कह रहे हैं, जो आपको सूट करे या ना करे सूट, क्योंकि गुरुजी इज द अल्टीमेट, वो तो भगवान है, महाशिव है। एंड इतनी अच्छी थी, सब कुछ हो गया, किसी को भी नहीं पता था, बस हम लोगों की बात थी। और उसके बाद फिर 8 को फिर वैसे ही सेलिब्रेशन हुआ, रिसेप्शन हुआ, सब कुछ हुआ जिस तरह से जैसे जैसे गुरुजी ने कराया। एंड दिस इज जस्ट बिटवीन गुरुजी एंड आवर फैमिली, एंड गुरुजी इज द हेड ऑफ अ फैमिली। और आप सब संगत हमारे उसी हिसाब से सब भाई बहन ही है, सारी संगत एक परिवार ही है जिसके साथ मैं ये इतना पर्सनल सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, उनके स्वरूप के सामने मैं बैठी हूँ। और यही मैं गुरुजी से विनती करती हूँ, गुरुजी हर बार कभी भी कोई भी दुविधा हो, आप हमेशा सही रास्ता हमें दिखाइएगा और सही रास्ते हर संगत को अपनी उंगली पकड़ के उनको उनकी राह तक पहुंचाइए गुरुजी। और हमेशा सबके साथ रहिए और ब्लेस करिए, अपनी भक्ति दीजिए गुरुजी, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि कोई भी भटक सकता है। इस समय आपकी भक्ति और आपका प्यार की आपकी बहुत जरूरत है सबको। और हमेशा अपने रहने का महसूस भी कराइए। कभी गुरुजी इतने ब्यूटीफुली रोटियों में ओम बन जाता है अपने आप, कैसे हो जाता है, आप कहीं भी जाते हैं आपको खुशबू आने लगती है गुरुजी की। और इतने सुंदर आप जब देखते हैं, कल बिल्कुल हमारे घर के पीछे पूरा फुल रेनबो था। ये मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, आप ये लाइटली नहीं लीजिए, आप नेचर में गुरुजी को ढूंढिए। ये नहीं देखिए कि ओम बना है, कि इसमें ये बना है, इसमें वो बना है। गुरुजी को ये सब चीजों में नहीं बांधिए, आप गुरुजी को बाहर निकलिए और हर एक दिन का शुक्र करिए जो हम सांस ले रहे हैं, हम हैं, हमारे परिवार है, हम अच्छी तरह से खा पी रहे हैं, ये सारी कुछ गुरुजी की मेहर है, बस किसी की वजह से नहीं है। बाहर जाइए, आप चाहे आप निकल ना पाए, कुछ बात नहीं, आप खिड़की से ही गुरुजी का दीदार करिए। चाहे गुरुजी कहते थे चांद सितारों में ही मेरे दर्शन होंगे, फूलों में, पत्तियों में, आसमान में, सब में गुरुजी रमे हुए हैं, हर जगह गुरुजी है, उनको महसूस करिए बस दिल से। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू अंकल।